Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is specially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. We are also providing the study materials such as previous year question bank, practice set question bank and quick revision note. For this you can mail us or our mail ID. So today we will discuss about the carbohydrate. This is a vast topic, so we are going to cover in a very small manner. So that's why we are only considering the points which is important from the exam. So I have just thoroughly go with the carbohydrate. If you are not read in a detailed manner still, so first I would like to suggest you guys that ki just go through the some of a standard textbook. From there you have to just read down the about carbohydrate. Then these quick points are useful for the NET JRF exam preparation. Now firstly, what is the carbohydrates and what is the types of the carbohydrate, basically classification under which we will discuss. They are simple sugar. As we know that carbohydrate is also known as simple sugar, that is the one point or substances which can be reduced to simple sugar by hydrolysis. Hydrolysis is a process for a breakdown. So basically what is the carbohydrate? Carbohydrate is a simple sugar or it is reduced to simple sugar by the hydrolysis process. They are composed of, so this question is asked in the previous year examination, so it can be possible that they would ask in future in another manner, so you have to remember this point. They are composed of carbon, hydrogen and oxygen. So basically what we come to know that कि carbohydrate कैसे बनता है, किन कंपाउंड से बनता है. तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है. द लास्ट टू बीइंग इन प्रोपोर्शन फ्रॉम वाटर, हैंस टर्म एज अ carbohydrate. General formula, this is also very important because it is also asked in the previous examination. What is the general formula of carbohydrate? That is the CnH2n and ON. That is very important. Carbohydrate are widely distributed in nature in form of sugar, starches and cellulose एंड अदर सब्सटेंसेस. बेसिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्या इनका ऐसा बेसिक सोर्स क्या है? तो बेसिक सोर्स की अगर हम बात करेंगे दैट इज़ द शुगर, स्टार्च या सेलुलोज. बेसिकली ये तीन ऐसे मेजर कंपोनेंट हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे मेजर फॉर्म में पाया जाता है. ना कार्बोहाइड्रेट इज क्लासिफाइड एज अ मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड polysaccharide. These are the basic classification of the carbohydrate under the nutritional content. So you have to just go with some standard textbook under which carbohydrate are mentioned in detail. So you have to read about that, what is the monosaccharides, disaccharides and polysaccharides, because in detail still JRF is not NET JRF in exam don't ask these types of questions. So you have to just read down for your concept clearance. Maybe they will ask, but still they are not asking from this portion. The term saccharides meaning sugar or sweetness, so you have to remember this term is related to characteristics of taste many simple sugar carbohydrate. There is a some term that is a fructose, which is also called as a fruit sugar, lactose that is also called as a milk sugar. Now what is the function of the carbohydrate? There is some briefing about that. That is the energy yielding. As we know that carbohydrate is the one of the major source of the energy, because जो भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं, लाइक शुगर हुआ जिसे हम चीनी कहते हैं, या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ें, बेसिकली ये चीज़ देखा गया जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मीठी चीज़ों में ज़्यादातर करके पाया जाता है. तो वो एक इंस्टेंट एनर्जी के सोर्स का मतलब तरीका होता है, उससे इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेज जो बॉडी को रिलीव मिलती है. सेकेंड वन दैट इज़ द प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन. थर्ड वन दैट इज़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. फोर्थ वन दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डाइटरी फाइबर.
we will cover another video for the dietary fiber, because it is a very important from the exam point of view, and many questions are asked from this portion. What is the dietary fiber types and their importance, like this. So we have make in another separate video regarding this, ki what is the dietary fiber and what is the role of dietary fiber in the body. Another one, that is the promote growth of desirable bacteria, biosynthesis of amino acid, role in muscle, role in liver. As you see that there are lots of functions are mentioned, so we can see that there is various functions performed by the carbohydrate, and now you come to know that how much carbohydrate is important for the body function. So as we earlier see that it is important for the energy source of, it is also in the important for the protein sparing action, it is also important for the oxidation of fats. When fat is oxidized, then carbohydrate play a very important role. Contribution of dietary fiber. Dietary fiber is a part of carbohydrate. डाइट्री फाइबर को हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो प्लांट्स में बेसिकली पाया जाता है, पेड़ पौधों में जो उसका बेसिक सोर्स होता है। तो अगर हम एक जनरल ब्रीफिंग के बारे में बात करें तो डाइट्री फाइबर वो होते हैं जैसे जो रेशेदार होते हैं, उसमें एक सॉल्यूबल होता है और एक इनसॉल्यूबल होता है। सॉल्यूबल जो होता है वो जो ईजिली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, और इनसॉल्यूबल जो होता है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, उसका जो रेसिड्यू होता है वो किसी न किसी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, या उसको बाद में एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू एनी मीडियम। सो दिस इज द डाइटरी फाइबर. Carbohydrate also promotes a good bacteria which is responsible for the good digestion, absorption and other process. ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट जो भी हमारी बॉडी में जिस भी सोर्सेज के थ्रू हम लेते हैं, और हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ गुड बैक्टीरिया। तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने के लिए। प्रोबेबली जैसे कि हम उसको एक मेजर टर्म में कहते हैं प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, दीज आर सम गुड बैक्टीरिया विच इज़ इम्प्रूविंग आवर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जो होता है वो एक प्रोटीन का पार्ट होता है। बेसिकली प्रोटीन अमाइनो एसिड ही प्रोटीन होता है और प्रोटीन ही अमाइनो एसिड होता है, अगर एक सिमिलर टर्म में कहा जाए तो उसके बायोसिंथेसिस में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसल्स इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट, लीवर, क्योंकि लीवर में जितने भी सिंथेसिस के प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, मसल्स में जो सिक्रीशंस होते हैं, जो भी उसकी बिल्डिंग के प्रोसेस होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोर्सेज. वी आर जस्ट ओनली फोकसिंग on the relevant points which is important from the exam point of view. So if you are not, again I am saying this, if you are not, अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई भी ऐसी टेक्स्ट बुक जिसमें आपने डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ आप पहले एक टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, ताकि आपको हमारी जो भी की टर्म्स हैं वो ईजिली समझ में आ जाएंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और वो किस तरह से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ना वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोर्सेज कि क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, हमें कहाँ से कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिल सकता है। सो बेसिकली देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज, एज वी अर्लियर डिस्कस अबाउट दैट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च जो होते हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द सीरियल्स सच एज राइस, wheat, maize, sago and all bakery products, pulses, potatoes, sweets, potatoes, yam and dry fruits. So these are the sources of the starch. Now we are talking about the sugar. अब sugar के क्या क्या sources हैं? Are present in cane sugar, jaggery, honey, jellies, dry fruits, sweets and fruit. एग्जाम्पल बनाना, सोपैटो, ग्रेप्स एंड मैंगो. सो बेसिकली वी कैन से दैट कि जितने भी मीठे आइटम्स होते हैं, जो ट्रूली डेडिकेटेड, जो एकदम प्योरली मीठे आइटम्स होते हैं, वो शुगर के सोर्सेज होते हैं। जैसे गुड़ की बात हुई, शहद की बात हुई, जैम की बात हुई, जेली की बात हुई, तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत ही प्योरली मीठी चीज़ें हैं जिसमें हम वो शुगर के तौर पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलुलोज. इट इज़ द फाइब्रस सब्सटेंसेस सच एज होल ग्रेन्स एंड होल पल्सेस. इट इज़ लाइक, अगर मैं इसको कहूँ, जो रेशेदार चीज़ें होती हैं. होल ग्रेन में क्या होता है, रेशा होता है जिसे हम फाइबर कहते हैं. सम आर सॉल्यूबल, सम आर इनसॉल्यूबल. तो इस तरह का जो डाइटरी फाइबर जिसमें प्रेजेंट होता है, फाइब्रस सब्सटेंसेस जिसमें प्रेजेंट होते हैं, वो एक सोर्स होता है सेलुलोज का, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स होता है. ना देयर इज सम टर्मिनोलॉजी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज
if you know these things, then you can easily understand the other concept. So what is the digestion क्या होता है? It is a process which release many nutrients in form of body can use by breaking a food in the intestinal tract. सो बेसिकली जो भी आप खाना खाते हैं, जब आप उसको खाने के बाद जो वो आपके बॉडी में ब्रेक डाउन होता है और उससे जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस विच कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स इन द सर्कुलेशन सिस्टम एंड डिलीवर देम टू द सेल. अब जो आपने खाना खाया और वो जो खाना टूट कर न्यूट्रिएंट्स में बना, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर मैंने इसलिए पहले एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने मेजर और माइनर न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि एनर्जी जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, सम इन अनदर टर्म प्रोटीन, और उसके साथ फैट, और अगर हम माइक्रो की बात करें दैट इज़ द विटामिन एंड मिनरल एंड इट इज़ ऑल्सो सब क्लासीफाइड, दैट इज़ द फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, मैक्रो मिनरल एंड माइक्रो मिनरल. सो आपके ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो मेजर हो माइनर हो, जो खाना खाने के बाद खाने को ब्रेक करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में रिलीज होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेशन सिस्टम तक पहुंचाना और उसके बाद उसको सेल तक डिलीवर करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन. नाउ यूटिलाइजेशन क्या होता है? द सेल इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एज वी हियर अंडरस्टैंड कि पहले खाना टूटा और फिर वो सेल तक पहुंच गया थ्रू वेरियस प्रोसेस. अब सेल hence a large number of chemical reactions the cell utilizes nutrients absorbed to produce material needed for our existence. अब जो सेल को वो जो अब यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स जो थे जो कि सर्कुलेशन सिस्टम में डिलीवर हुए थ्रू सेल, तो वो जो सेल्स होती हैं फर्दर वो केमिकल रिएक्शंस करके ऐसे मटेरियल्स को जनरेट करती हैं जो हमारी बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. समटाइम्स वी कैन से दैट कि जो हमारी डेली टू डेली एक्टिविटी होती है, लाइक हमारा चलना फिरना, खाना, हमें जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिक सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसके लिए जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं उसमें जो सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करके उस तरह की एनर्जी को जनरेट करती हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज अ utilization. Hope you guys understand. If you have any query you can ask in the comment box. Now when we're talking about the digestion process, because I am not going to complete in description, we are just going with some important things कि क्या digestion में ऐसा है जो important है exam point of view से. So here we are discussing about only that point of view. That the digestion process begins with the chewing food in the mouth. So basically कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से. द एंजाइम पिथाइलिन दैट इज़ अ सेलेवरी एमाइलेज स्टार्ट द डाइजेशन फ्रॉम स्टार्च इन द माउथ. सो बेसिकली सेलेवरी एमाइलेज से स्टार्ट होता है एंजाइम के साथ, जो कि मुंह में स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन. इट हाइड्रोलाइजेज स्टार्च टू डेक्स्ट्रिन, आइसोमाल्टोज एंड माल्टोज. सो ये जो सेलेवरीज एमाइलेज होता है ये हाइड्रोलाइज किस में होता है? ये 3 चीज़ों में होता है, दैट इज़ अ डेक्स्ट्रिन, आइसोमाल्टोज एंड माल्टोज इन न्यूट्रल और एल्कलाइन पीएच इन द माउथ. पीएच का जो माउथ का जो पीएच होता है दैट इज़ अ न्यूट्रल, अदरवाइज इट इज़ एल्कलाइन. नाउ द फूड टेस्ट स्वीट ड्यू टू दीज प्रोडक्ट्स आर हाइड्रोलाइसिस. अब जब आपने कभी ये देखा होगा, दिस कैन बी आस्क्ड इन अ प्रैक्टिकल मैनर कि आप जो भी खाना खाते हो आपके मुंह में मीठा सा क्यों फीलिंग आती है, ऐसा कुछ, नॉट अबाउट मिर्ची एंड कड़वा, लेकिन एक हल्का सा स्वीट सा टेस्ट आता है. आप कभी भी रियलाइज़ करिएगा इस चीज़ को. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलाइसिस process. Now, the activity of amylase continues in its movement from the mouth to upper part of the stomach. Now, माउथ से कहाँ पे गया? ये अपर पार्ट ऑफ द स्टमक चला गया. बट एज सुन एज द फूड मैश द कम कॉन्टैक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज ऑल्सो नोन एज द HCl. सो ये उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है, सिक्रेटेड देयर. दिस एक्शन के सीजेस वेरी लिटिल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर इन द स्टमक एज अ पीएच इज अनफेवरेबल. चूँकि पीएच जो होता है वो फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए बहुत ही छोटा अमाउंट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का अपर पार्ट ऑफ द स्टमक में होता है. Now, the food is mixed with the gastric juice form of semi-fluid mess called chyme. So, it is a very important term. What is the chyme?
काइम जो होता है, जब खाना जो होता है वह गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है सेमी फॉर्म एज अ सेमी फ्लूइड, सो दिस मेस इज कॉल्ड एज अ काइम. द मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन इट्स थ्री compartments, namely duodenum, the jejunum and ileum. So when we are talking about the stomach and intestine, there is a three parts, that is the duodenum, jejunum and ileum. So when we talking about the carbohydrate, the mostly digestions are occur in between three parts of the stomach. So carbohydrate digestion occur almost completely in small intestine, mainly in the duodenum. So this is the very important कि carbohydrate का digestion कहाँ पे होता है. तो अगर हम मेजरली बात करें, इट इज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और अगर हम एक स्पेसिफिक साइट की बात करें, दैट इज़ द ड्यूडोनियम. पेनक्रेटिक एमाइलेज ब्रेक द स्टार्चेस इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रिन. जो भी एमाइलेज होते हैं, पेनक्रेटिक एमाइलेज होते हैं, वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं, दैट इज द माल्टोज एंड डेक्सट्रिन. द माल्टोज फ्रॉम म्यूकोसल सेल ब्रेक्स डाउन इनटू माल्टोज टू ग्लूकोज. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट. द ब्रेस्ट बॉर्डर ऑफ द surface epithelial cells lining the intestines and sites of this enzyme action is occurred. So this is the some important enzymes name. This can be asked in the exam. Now the enzyme sucrase, lactase and maltase and isomaltase found the outer cell membrane of the intestine. When we are talking about the intestine, तो ये कुछ हार्मो एंजाइम्स के नेम हैं, दैट इज़ द लैक्टेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, और ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये आउटर सेल ऑफ इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. एक्ट ऑन द शुगर, जो कि शुगर सुक्रोज, दैट इज लैक्टोज एंड माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज पे रिएक्ट करते हैं. द मोनोसेक्राइड्स फॉर्म, जो मोनोसेक्राइड होता है वो क्या होता है, दैट इज द ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फैरेक्टोज, पास थ्रू द म्यूकोसल सेल विया capillary into the blood stream. These are carried to the liver by the portal vein, और finally जब absorption process होता है तो ये portal vein के through liver में carried on होते हैं. So this is all about the digestion process, or a very key point which is used for the digestion process. So still, if you have any query, you can ask in the comment box, or you can also mail us our mail ID. Thank you so much for watching and learning. Keep watching, keep learning, stay safe, stay healthy.